record and share the screen. Okay, and I'm going to share this slides. Okay, students, today's topic is future time, or all the syntax structure that can give the meaning of future. Like, it's not necessary that only the syntax structure of simple future should give the meaning of future tense. There could be the syntax structure. Syntax structure means the order of the words. Ya alfaz ki tartib. I will go to London. ठीक है, ये तो simple future है ही है. लेकिन I'm going to London. अब ये अल्फाज की तरतीब तो present continuous की है, लेकिन ये माना future का देता है या नहीं. ये वो सारी इस तरह की बातें that we are going to discuss in today's lecture. The things that are already known to you, I'm not going to waste your time on those things. Instead, I will devote more time to some things or the things that are not familiar with you. So begin with, kindly आप लोग कोशिश करें कि इन टाइम आ जाए करें, ताकि जो चीज़ें प्रिपेयर की आप लोगों के लिए आप वो enjoy कर सकें. To begin with, future tense, ways to express future, different ways to express future. तो पहला सबसे पहले तो आपका आ जाता है will और shall का स्ट्रक्चर. आपको ऑलरेडी पता है. It shows an action or a state that will take place in the future. इसको simple future कहते हैं, जो आने वाले वक्त में वक़ू पज़ीर हो. For example, Kabir will study BBA after 2 years. Kabir will study BBA full stop. ये भी future tense है. इसके साथ आप time expression लगाएं after 2 years. ये grammatically a perfect future tense है. Kabir will study BBA. ये भी future है. But grammar says you have to add some time expression like after 2 years. So अब ये perfect future tense है. Fine. Will shall आप लगाते हैं. Right from the beginning, I told you that you are going to follow most of the time American English. American English में will और shall को discuss ही नहीं करते. वो कहते हैं, for example, यही sentence, Kabir will study BBA. तो कहते हैं Kabir will, like जैसे ये. Kabir apostrophe Kabir will study BBA after 2 years. अब इसमें नहीं पता लग रहा है कि Kabir will है या Kabir shall है. And that's typical American accent or American style. Kabir will study BBA after 2 years. अब इसमें ना तो shall का पता लग रहा है ना will का पता लग रहा है. But अगर आप traditional British grammar जिस तरह हम पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि I और V के साथ shall, I और V के साथ shall, और बाकी सब के साथ आपने will लगाना है. तो I'll study का मतलब है I will study. Hello? सर जी. सर आई के साथ हम वेल भी लगा सकते हैं जब किसी चीज पे हम डिप्रेशन देते हैं. मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आपका सवाल का जवाब आ जाता अगर आप मुझे इंटरप्ट ना करें. आई और वी के साथ हम shall यूज करते हैं, बाकी सब प्रोनाउंस के साथ हम will यूज करते हैं. लेकिन जब हम एम्फेसिस किसी बात पर ताकीद करते हैं तो फिर हम यही तरतीब को रिवर्स कर देते हैं. यानी आई और वी के साथ नॉर्मल shall आता है, फिर हम आई और वी के साथ will लगा देते हैं. आई विल डू इट. तो फिर आप अपनी बात पे स्ट्रेस कर रहे होते हैं. लेकिन ये ब्रिटिश ग्रामर में मैं फिर बता रहा हूँ, यानी अगर आप आइल्स करें तो उसमें आपको इस तरह का मसला आएगा. आई विल स्ट्रेस के लिए, आई शैल नॉर्मल के लिए. लेकिन आप ब्रिटिश अमेरिकन में आते हैं, जब टॉफल टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज देते हैं, तो वहाँ पे फिर ये मसला नहीं होता. तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दिया. अदरवाइज वी आर गोइंग टू एडहियर टू अमेरिकन इंग्लिश, और अमेरिकन में न शैल है न विल है. तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी सिंटैक्स स्ट्रक्चर या इसका फॉर्मूला. सब्जेक्ट
will वर्ब complement, ये आपको पता है. Subject Ahmed will buy, verb a car. Complement भी हो सकता है, object भी हो सकता है. From Tokyo next year. Next year आपका time expression है. अगर आप लगाएं कि Ahmed will buy a car from Tokyo, full stop, तब भी ठीक है. Grammatically next year time expression देना जरूरी है. Will आपका helping verb है, इसको शुरू में लगा दें तो sentence आपका interrogative बन जाता है. Will Ahmed buy a car from Herat next year? और अगर इसी के साथ not लगा दें sentence becomes negative. ये है वो help जो कि ये helping verb main verb को देता है. जुमले के शुरू में लगा दें जुमला interrogative, इसी helping verb के साथ not लगा दें जुमला negative. तो will Ahmed buy a car from Herat next year? ये आपका interrogative. Ahmed will not buy या Ahmed won't buy a car from Herat next year. अच्छा again won't कोई इतना formal word नहीं है. मतलब आप एप्लीकेशन में, रेज्यूमे में, बिजनेस कम्युनिकेशन में won't को अवॉइड करें तो बेहतर होगा. लोग यूज करते हैं, अवॉइड करें तो बेहतर है. ये मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू, एनिमेशंस के थ्रू बताना चाहूंगा. I plus will तो कंट्रैक्शन में हो जाता है I'll. I apostrophe double L तो I'll. जिस तरह ये लिखने में वैसे ये पढ़ने में I'll. She plus will becomes she'll. She'll. जिस तरह लिखने में वैसे आप पढ़ें तो आपकी अदायगी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होगी. She'll. और he plus will becomes he'll. यही हाल we plus will का will. You plus will, you जिस तरह लिखा है वैसे पढ़ना है. They'll. Pronoun plus will is a speech and formal writing. जी. सर Yes. ये जो हम जिस चीज पे जोर देते हैं तो आई और वी के साथ हम will का यूज करते हैं, फिर जब she पे हम जोर देते हैं तो इसके साथ will का यूज क्यों नहीं करते हैं हम? मैंने आपको बताया बीबी कि ये अब अमेरिकन स्टाइल हर जगह पे चल रहा है. उसमें जैसे आपने कहा she के साथ, तो अब ये डबल एल आ गया तो पता नहीं है कि ये she प्लस will है या she प्लस shall है. तो वो बात आपको पुरानी हो गई, shall और will वाली. सॉरी. आज की मॉडर्न ग्रामर में ये shall और will का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया. अब वो डायरेक्ट she'll और will लगा रहे हैं. ये जो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं ये इसमें will और shall मैंने ऐड किया है. ये जहाँ से मैंने जिस रिसोर्स से मैंने लिया वहाँ पे shall और will की मसला था ही नहीं. ये मैंने खुद ऐड किया इसलिए सिर्फ इसको डिस्कस कर लिया जाए. अदरवाइज आजकल ये इस तरह की बात नहीं हो रही है. ये स्ट्रेस देने के लिए अपनी बात पे ये पहले या ट्रेडिशनल ग्रामर में इस तरह होती थी. जब से ये डायरेक्ट लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच आई है जिसमें स्टूडेंट्स को स्पीकिंग एनवायरनमेंट में इंजेक्ट किया जाता है, इस अप्रोच के आने के बाद ग्रामर आखिर में आ गई है. स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर आखिर में आ गई है. ग्रामर की जो अहमियत थी इस सेकंड अप्रोच की वजह से आजकल की मॉडर्न अप्रोच जो कि वर्ल्ड वाइड तमाम लैंग्वेजेस की टीचिंग के लिए, not just for English, for all the languages that you want to learn, you will come across the same direct language learning approach in which the grammar comes at the end in these skills. आपके जो skills है ना, speaking, listening, reading, writing और grammar, तो grammar को आखिर में रखते हैं. तो grammar की अहमियत वो दिन ब दिन कम होती जा रही है. वो कहते हैं अगर आपकी speaking is correct और आपकी writing, speaking और writing ये outputs हैं, reproductive skills हैं. तो अगर आउटपुट्स आपके सही हैं इसका मतलब आपको ग्रामर आती है. नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन ग्रामर, वो यहाँ तक कहते हैं. नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन ग्रामर. और ग्रामर में विल और शल की बात ही खत्म हो जाती है. और जो आप कहते हैं कि ताकीद के लिए, तो होल्ड ऑन विद दिस क्वेश्चन. आपका ये क्वेश्चन आगे थोड़ा सा भी आंसर हो जाएगा, मुझे सिर्फ याद करा दे अगर जवाब ना दिया तो. बॉब प्लस विल, अब ये नामों के साथ, इससे पहले प्रोनाउन थे, अभी नाउन के साथ. जैसे बॉब एक प्रॉपर नाउन है, बॉब, हमीदा, हमीद, राशिद, राशिदा, जमील,
for example, Bob plus will, Bob will, doctor plus will, the doctor will, and so on. ये noun plus will के साथ आप speech में use कर सकते हैं form. Probably, गालिबन मैं ऐसा करूँगा क्योंकि future is uncertain. We plan but we do not know. We are not sure if we'll be able to do our intended things accordingly or not. We are not sure about that. So sometimes we use probably. गालिबन इम्कान है कि मैं ऐसा कर लूँगा. तो इम्कान को हम probability कहते हैं. Statistics में भी आपने पढ़ा होगा शायद. तो फ्यूचर में चूंकि आप सर्टेन बाज़ औक़ात नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके प्लान्स के साथ रिलेटेड होती हैं. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि I will probably help you if I get salary. तो आपकी हेल्प सैलरी के साथ बंधी हुई है. I'll give you medicine. I'll probably give you medicine if my brother comes. तो आपका ब्रदर आता है तो तब आप मेडिसिन देते हैं, फॉर एग्जांपल. तो इसलिए फिर फ्यूचर में अक्सर आप probably भी यूज करते हैं. तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर सकते हैं. In positive sentences में you have to will आता है. For example, Mansoor will probably. Positive, musbat, affirmative जुमले में will के बाद आता है. Mansoor will probably join us tomorrow. लेकिन negative में यही negative से पहले आ जाता है. जैसे Mansoor probably won't join us today. Mansoor probably won't or will not. तो won't से पहले probably आ रहा है. तो ये थोड़ा सा देखते हैं, एक चीज याद रखने वाली है जिसे मैंने आपको कहा कि कुछ की चीज़ ऐसी है जिनसे आप इतने फेमिलियर नहीं है. तो एक ये कि प्रोबेबली आता है, पॉजिटिव में विल के बाद और नेगेटिव में वोंट या विल नॉट से पहले आता है. ये प्रैक्टिस की चीज़ें जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा. थोड़ा सा आप में से एक स्टूडेंट ने सवाल किया था स्ट्रेस के लिए कैसे. तो डायरेक्टली तो आपका ये जवाब नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली मैं आपको बता दूँ कि जुमले में एक लफ्ज़ की लोकेशन से भी स्ट्रेस पैदा किया जा सकता है, या उसकी इंटोनेशन में. इंटोनेशन कहते हैं आवाज़ का मद्दोजज़र, आवाज़ का भी मुज़र, आवाज़ का उतार चढ़ाव. इसको आप कैडेंस भी कह सकते हैं. फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि ही इज़ द थीफ, और वो ही कहते हैं मी, ऊंची आवाज़ में कहते हैं मी. तो मतलब है कि सवालिया का ये एक इम्प्रेशन दे रहा है कि मैं चोर हूँ. तो उसका सिर्फ आवाज़ का उतार चढ़ाव से भी जुमले का या लफ्ज़ का एक्सप्रेशन, उसका मानी बदला भी जा सकता है, अखज़ भी किया जा सकता है. तो ये आ जाता है आपकी स्पीच में. राइटिंग में आपके अल्फाज की तरतीब को आगे पीछे करके आप जुमले में स्ट्रेस, ताकीद पैदा कर सकते हैं. ये आपके डायरेक्ट इससे रिलेटेड नहीं है, फिर मैं किसी वक्त इसको डिटेल में इसको बताऊँगा, क्योंकि इसके लिए कहना तो पूरा लेक्चर चाहिए. हमारा आज का टॉपिक रह जाएगा अगर वो स्ट्रेस थ्रू लोकेशन ऑफ द वर्ड्स उस साइड पे चले जाएंगे. नीचे मैंने थोड़ा सा इसका हिंट दिया हुआ है. ये पहले मैं पढ़ाता था BBA की क्लासेस में, तो वहाँ पे 3 घंटे की क्लास होती थी, टाइम ज़्यादा होता था. तो उसमें मैं एक स्लाइड पे 1-1 घंटा भी बात कर सकता था. तो प्रैक्टिस भी होती थी, क्वेश्चन आंसर्स भी होते थे, तो उसको और था. यहाँ पे चूँकि 45 मिनट से भी बजाय लेट कमर्स की वजह से, कुछ सिस्टम के इश्यूज़ की वजह से, कुछ नेट के इश्यूज़ की वजह से वो 45 से भी 40 मिनट की क्लास हो जाती है. तो we are short of time, we become more short of time. तो हम जो टॉपिक से थोड़ा सा भी रिलेटेड नहीं होते उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देते. ways to express future, ये 7 तरीके हैं कि हम मुज़ारे मुस्तकबिल का मानी के लिए यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले will का I will help you, I will help you, I shall help you या I'll help you, और ये आपको पता है. दूसरा है be going to, I am going to, you are going to, he is going to. तो is going to का मतलब है will, am going to का मतलब है will, are going to का मतलब है will. तो ये भी फ्यूचर का मानी इस्तेमाल का होगा, ये भी बताएंगे. may, might, I may help you, शायद मैं तुम्हारी मदद करूं. ये शायद हमेशा मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होता है, माजी के लिए नहीं हो सकता. शायद वहीं पे आता है जहाँ पे बात क्लियर ना हो. शायद मैं तुम्हारी मदद करूं, शायद मैं तुम्हारी मदद ना करूं. I may help you, I may not help you. तो ये फ्यूचर के लिए ही हो सकता है may. दूसरा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको एक टच देंगे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, एक टच देंगे इसको. इंटेंट, नियत, टू इंटेंट, नियत करना. प्लान, आप एक प्लान करके, आपका प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए ही होता है. आज तक माजी का कोई प्लान नहीं करता है, हमेशा फ्यूचर ही प्लान करते हैं. होप, उम्मीद, ये हमेशा मुस्तकबिल में ही या वक़ू पज़ीर होती है. It takes place or it doesn't take place. Hope,
it gets fulfilled or it doesn't. उम्मीद भी or hope इसका ताल्लुक भी मुस्तकबिल से ही है. Be about to मुस्तकबिल करीब के लिए इस्तेमाल होता है. हाँ, इनको एक एक करके देखते हैं इनको. सबसे पहले will, I will help you और I am going to help you. क्या फर्क हो सकता है जिसमें जरा मुझे बताएं ना, किसी को पता है? I will help you, I am going to help you. इसमें क्या फर्क हो सकता है? सर ये जो will लगाया हुआ है ये इंप्रेशन पे लगाया गया है कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा. अच्छा, और क्या कहेंगे कि I am going to help you, तो फिर क्या हो जाएगा जी? कि मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ. देखिए जी. I will help you फ्यूचर में है और I am going to help you प्रेजेंट में है. अच्छा, गुड, मतलब अच्छी बात है. आई अप्रिशिएट आप अपना माफी ज़मीर ज़रूर बयान करें, चाहे गलती क्यों ना हो, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा. I help you tomorrow. आपने टाइम एक्सप्रेशन देना है. अभी हम ग्रामेटिकल स्टडी कर रहे हैं तो ग्रामर की फॉर्मेलिटीज को जरा फॉलो करते हैं. I will help you tomorrow, full stop. और मैं इसको लिखता हूँ कि I am going to help you tomorrow. मेरा ये क्वेश्चन था कि इन दोनों में फर्क क्या है. ठीक है जी, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं. मुझे जरा बता दें अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं. यस सर. अभी जो मैंने टाइप किया, I'll help you tomorrow या I'm gonna help you tomorrow, ये आप दोनों पढ़ सकते हैं जुमले जो लिखे. हेलो, हेलो. जी सर. यस सर. अच्छा जी. सर ये जो सेकंड सेंटेंस आपने लिखा है, आई एम गोइंग टू हेल्प यू टुमारो, सर ये तो प्रेजेंट में भी आता है. मींस प्रेजेंट यूज इज अ परफेक्ट टेंस, ना फ्यूचर टेंस. सॉरी सर. अच्छा, ये am going जो है, am going में आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ. am going to ये इक्वल है will या shall के, बस. सर ये है लेकिन सर ये प्रेजेंट टेंस है लेकिन इज अ फ्यूचर यूज हुआ है प्रेजेंट टेंस सर. हाँ, ये एक स्ट्रक्चर है या इसको आप एक्सप्रेशन कहें जो कि फ्यूचर का मीनिंग देती है. am going to या be going to स्ट्रक्चर कहते हैं. be going to, be means to be verbs. am, is, are, ये हैं तीन to be verbs. तो am going to will या am going to का मतलब shall होता है और ये दोनों माना फ्यूचर में होता है. to cut the story short, I'll help you tomorrow. इसमें मेरा कोई मजबूत इरादा नहीं है, लेकिन आप कहें ना कि I'm going to help you tomorrow, तो अमेरिकन इंग्लिश के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक इसका मतलब मैं अपनी बात पे बड़ा पक्का हूँ, मजबूत इरादा है, मेरे डिटर्मिनेशन है, मेरा मुसम्मम इरादा है. I'm going to help you, तो going to help you is stronger than will or shall. मैं रिपीट करता हूँ. am going to structure या be going to structure, it shows more or it has more emphasis on the verb compared to will or shall. अमेरिकन इंग्लिश के मुताबिक be going to ये ज्यादा वर्ब को ताकीद करता है बनिस्बत will और shall. ये है फर्क इसका. ये मैं रिपीट करता हूँ. अमेरिकन ग्रामर की फॉर्मेलिटीज उसकी फॉर्मेलिटी के मुताबिक. वापस आते हैं जी. will और shall, ये देखें थोड़ा सा कंपैरिजन भी इसमें आ गया. ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, कभी दुआएं देंगे. will इसमें प्रेडिक्शन विद नो एविडेंस, जैसे I will help you, इसमें कोई सबूत नहीं है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कहीं, लेकिन
अगर आप कहते हैं कि I'm going to help you, इसमें थोड़ा सा प्रिडिक्शन एविडेंस दे देते हैं। I'm going to help you if I get salary, if I get salary, ये आपका एविडेंस हो गया। इसके अलावा विल आपका इमीडिएट प्लान्स हो, पूरी आपका प्लान हो, I will be there, don't worry, I'll be there, don't worry, ये आपका इमीडिएट प्लान है। और जबकि be going to, I'm going to be there if I get a best, अभी देखें ये साथ है, ये मेरी प्री प्लान एक्टिविटी है। I'm going to be there when I get the best, तो ये मेरा पहले से प्री प्लान, पहले से प्लान्ड एक्टिविटी के लिए be going। फिर willingness, इसमें आपकी सिर्फ एक willingness होती है कि I'll stand by you, stand by means I'll help you, I'll stand by you, ये मेरी willingness, मेरी मर्जी है। आप मर्जी के लिए भी will का यूज कर सकते हैं। इधर जब आप आते हैं तो ये आपकी सिर्फ एक पूरी पक्की नीयत है। जब आप कहते हैं I will help you, तो ये स्पीकर को पता होता है कि उसकी इंटेंशन है कि I will help you या I'm going to help you, स्पीकर को पता होता है इसकी पक्की नीयत। प्रॉमिस में ये लोग यूज करते हैं बट इसमें कोई एविडेंस नहीं होता है, तो प्रॉमिस तो होता है, एविडेंस नहीं होता है। I will help you, तो एविडेंस तो कोई है नहीं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जैसे would you help me please, क्या आप मेरी मदद करेंगे। यहाँ पर जो would है, ये would बजाते खुद एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, सेल्फ सफिशिएंट खुद का फील वर्ड है। इसको आप जुमले से निकाल दें, ये आपने जो बातें याद रखी है भूलनी नहीं है। would को आप जुमले में से निकाल दें तो जुमले में से एक नजाकत कर्टसी खत्म हो जाती है। जुमले का मानी वही रहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मुझे पानी का ग्लास दो, और फिर आप कहते हैं यार प्लीज मुझे जरा पानी का गिलास एक दे दे, तो मानी तो एक ही है, लेकिन पहले जो है वो बड़ा ही बदतहजीब सा जुमला है, पानी का गिलास। दूसरा कहते हैं यार प्लीज जरा पानी का गिलास देना यार, तो दूसरा बड़ा मोहब्बत वाला, बड़ा कर्टिसी है, उसमें नजाकत। तो ये वुड ऐसी ही चीज है कि सेल्फ सफिशिएंट वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, और सिर्फ जुमले में नजाकत के लिए आता है, और शुरू में आता है वुड यू हेल्प मी प्लीज, ये भी फ्यूचर के लिए आता है। और वुड फिर मुझसे शायद ये भूल जाए, इससे रिलेटेड नहीं है, काम की, बहुत काम की चीज है। सर गुड, बिल्कुल, ये हमने थोड़ा सा आपको ऑन होल्ड रखे, अभी इसका टाइम नहीं है। गुड भी ऐसे ही है, बिल्कुल वुड ही की चीज तरह की है, किसी की चीज है, सेम डिटो कॉपी है, कोई मानी नहीं है सिवाय नजाकत के लिए। अलबत्ता वुड में एक चीज है कि वुड, आपको मैं मिसाल देता हूँ, वी वुड क्राई व्हेन वी वर बेबीज, मैं और आप, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ। वी वुड क्राई व्हेन वी वर बेबीज, हम रोते थे और बार बार रोते थे, एक काम जो हम बार बार करते थे लेकिन अभी नहीं कर रहे, एक काम जो माजी में करते थे, बार बार करते थे, रुक रुक कर वक्फे से करते थे, लेकिन अभी नहीं करते, उसके लिए वुड आता है, एक बार। दूसरा, आप ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहते हैं कि he said I will help you, ये डायरेक्ट है। he said माजी में उसने कहा, he said माजी में, he said उसने माजी में कहा I will help you, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करें तो आप कहेंगे he said that he would help me, will को आपने would में बदल दिया, तो उसका मतलब है कि would will का पास्ट फॉर्म भी है। मैं अगर लिख दूं तो शायद आपको सहूलत हो जाए। he said I'll help you tomorrow, ये उसने कहा, ये आपका डायरेक्ट हो गया। मैं इसको इनडायरेक्ट में करता हूँ, he told, he said, he told, ग्रामर के बुक्स कहते हैं ये एक ही जैसी, कोई फर्क नहीं। he told that he would help me the next day, जी। सर अगर हम ऐसा कहें कि नो मैटर आई कैन हेल्प यू, सर फिर दोबारा बोले जरा। नो मैटर आई कैन हेल्प यू, नो मी, मैं आपका सवाल नहीं कैच कर रहा हूँ। सर नो मैटर आई कैन हेल्प यू, नो मैटर, ये आप एज इट इज रखेंगे, इसको आप चेंज नहीं करेंगे।
इस तरह के अल्फाज आप चेंज नहीं करते इनडायरेक्ट। तो आप देखें ये आई विल या आई शैल जो भी है, विल और शैल को हमने चेंज किया वुड में। तो वुड आपका माजी का मानी देता है। वुड यू हेल्प मी, वहां पे वुड कर्टेसी के लिए यूज हुआ, यहाँ पे वुड माजी के मानी के लिए इस्तेमाल होता है। He would help me the next day। कुछ बात समझ आ रही है जी? जी जुमला एक दफा फिर No matter, no matter, I can help you। Yeah, he promised, yeah, he told that no matter he could help me। can आप could में चेंज कर देंगे क्योंकि माजी की बात है, तो can और could। ओके, मुताहिर हबीब साहब ने कहा कि काइंडली लेट द टीचर टीच अस समथिंग। लास्ट में क्वेश्चंस करें प्लीज। ये हबीब मुताहिर हबीब साहब का ये सजेशन है आप सब लोगों के लिए, मुझे कोई इशू नहीं है लास्ट में शुरू में, लेकिन बस आपने अपने क्वेश्चन लिख लें, आखिर में मुझसे पूछ लें, SMS कर दें, व्हाट्सएप पे मैं उसमें भी जवाब दे दूँ, कॉल कर लें, कोई इशू नहीं। ओके जी, तो ये वुड आपका माजी के मानी में भी यूज होता है। वुड जुमले के शुरू में आए तो कर्टेसी के मानी में यूज होता है। और तीसरा यूज ऑफ वुड, ये भी मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट। क्योंकि ये दोबारा मेरा नहीं ख्याल कि हम स्टडी करेंगे। वुड दैट आई वाज रिच, क्या मतलब है इस जुमले का? सॉरी, क्या मतलब है इस जुमले का जी? एनी वन ऑफ यू? वुड दैट आई वाज रिच। मैं अमीर हूँ, लेकिन मैं अमीर हूँ जब मैं अमीर चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग फाइन। एनीवन एल्स? सुहेल खान या एहसान एक्सप्रेस? ओह माय गॉश, हमारे पास 10 मिनट है और इसमें हमने कवर करना है। वुड दैट, एनीवन एल्स? वुड दैट इन दो लफ्जों का मिला के मतलब बनता है काश। वुड दैट, काश, आई वाज रिच। वुड दैट आई वाज रिच, ये है, मैं आपको बता दूं फिर यहाँ पे यूएस। इसी जुमले को आप ब्रिटिश में लिखें, वुड दैट आई वर रिच, ये आपका हो जाएगा ब्रिटिश इंग्लिश। वुड दैट आई वर रिच, अमेरिकन वुड दैट आई वाज रिच। ये फर्क है जी दोनों का। वुड दैट आई वाज रिच, वुड दैट आई वर रिच, फर्क सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन का। तो यहाँ पे वुड अकेला नहीं, वुड दैट, वुड प्लस दैट, ये कंस्ट्रक्शन आपको काश का मानी देता है। वुड दैट आई वाज रिच, काश मैं अमीर होता। वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। दोनों एक ही हैं, यूएस और ब्रिटिश का है, बाकी क्लियर है जी? जी सर आई के साथ तो वार नहीं लगता है, मैंने हाँ ये बताया मैंने आपको कि ये बिल्कुल डिफरेंट सेंटेक्स स्ट्रक्चर है। वुड और दैट ये मिलकर काश का मानी देते हैं, और जब ये इस तरह की सिचुएशन हो और ब्रिटिश इंग्लिश हो तो आप वर यूज करते हैं, और अगर अमेरिकन हो तो आप वाज यूज करते हैं। उसकी वजह ये भी है कि ब्रिटिश वो लोग हैं जिनकी अंग्रेजी असल में उनकी अंग्रेजी जबान है, और अमेरिकन वो लोग हैं जो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आकर अमेरिका में आबाद हुए। यूरोपियंस थे, कोई जर्मन थे, कोई फ्रेंच थे, कोई स्पेनियर्स थे, तो उनकी अपनी जबान अंग्रेजी नहीं थी, तो उन्होंने आई के साथ वाज ही लगाया। लेकिन ब्रिटिश की अपनी ही जबान अंग्रेजी थी, उनको अंग्रेजी जबान की अपने सर्फ और नहव ग्रामर का पता था, तो वो उनको पता था कि वुड प्लस दैट जिसका मानी काश है, अगर ये बात हो, काश वाली बात हो, तो आई के साथ वर लगेगा। तो ब्रिटिश में जाए वो भी आई वर ही यूज करते, अमेरिका में आए तो आई वाज यूज करते। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि जब ये काश का मानी दे वुड प्लस दैट और ब्रिटिश इंग्लिश हो तो आप आई वर यूज, वुड दैट आई वर। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश हो तो फिर आप
I was ही यूज करते हैं। ओके, तो देखिए ये वुड पे मैंने आपका इतना टाइम लिया, मुझे पता था कि they will probably move into their new home next week. ये छोटी सी आपके लिए slides हैं. I will finish my homework tonight. I'm going to finish my homework tonight. अब इनमें फर्क तो है ना थोड़ा सा, क्या ख्याल है, क्या फर्क है जिनमें? Any one of you? इन दोनों जुमले में कोई फर्क है? I'll finish my homework. I'll finish my homework tonight. I'm going to finish my homework tonight. Will finish or am going to finish. इन दोनों में क्या फर्क है? Sir, I'm finish my homework tonight या क्या? जी. सर इसका मतलब तो ये है कि मैंने रात को अपना काम तमाम कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन ये दूसरा जुमला सर बता दें। बीबी दोनों का मतलब यही है कि मैं आज रात अपना काम खत्म कर लूंगी, तस्वीर के मुताबिक ये खातून कह रही हैं मैं आज रात अपना काम खत्म कर लूंगी। होम असाइनमेंट है जो भी है वो लिख रही हैं, तो कहती है आज रात मैं काम खत्म कर लूंगी। मानी दोनों का एक ही है, दोनों का तर्जुमा एक ही रहेगा, लेकिन पहले में बात पे इतना दम नहीं है, उसको यकीन नहीं है कि वो आज रात खत्म कर लेगी। और आई एम गोइंग टू, बी गोइंग टू मैंने आपको बताया था कि इसमें बात करने वाले को पता होता है कि इसमें वजन है, मैं ताईद है, ताकीद है, स्ट्रेस है। मैं आज रात बाल्फाज़े दीगर, मैं आज रात जरूर अपना काम खत्म कर लूंगी, यूं आप समझ। पहला जुमला है कि मैं आज रात अपना काम खत्म कर लूंगी, दूसरा है मैं आज रात अपना काम जरूर खत्म कर लूंगी। ये फर्क है दोनों में। बी गोइंग टू इज स्ट्रॉन्गर देन विल, ये मैंने आपको बताया। बी गोइंग टू स्ट्रक्चर इज स्ट्रॉन्गर देन विल, ये 100% श्योर है। विल बी गोइंग टू श्योर। ये स्लाइड्स आपको अच्छी लगेंगी। Ali will probably finish his homework. Ali is probably going to finish his homework. Probably इम्कान गालिब है, गालिबन 100% श्योर नहीं, 90% श्योर जब हो तो आप probably यूज करते हैं। ये देखें इसका सिंटैक्स स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब और probably। %90 sure. Ali probably won't finish his homework. Ali probably isn't going to finish his homework. नेगेटिव में यही बात आ गई, और जब नेगेटिव हो तो probably won't से पहले आएगा, isn't से पहले आएगा, ये हम पढ़ चुके। When verb is negative तो probably पहले आ जाता है, ये पढ़ चुके। Kareem may quit his job. करीम शायद अपनी जॉब छोड़ दे, मुस्तकबिल का मानी दे रहा है। नेक्स्ट है मे की हम बात करें तो मे दरमियान में आता है, तो ये गालिबन इम्कान, और ये 50% श्योरिटी बताता है। करीम may quit his job, करीम may not quit his job, दोनों प्रोबेबिलिटीज हैं, तो ये कितना श्योर है? 50%। जब आपका वर्ब फेल, आपका इरादा 50% हो तो आप मे यूज करते हैं। मैं शायद जॉब छोड़ दूं, उर्दू में भी कहते हैं मैं शायद जॉब ना छोड़ूं, तो 50% तो ये है मे, और ये आपको पता है। नो नीड टू वेस्ट टाइम। Maybe Kareem will quit his job and maybe he won't, or maybe Kareem is going to quit his job and maybe he isn't. दोनों में दोनों सेम है, सेम मीनिंग है, कोई फर्क नहीं है। No need to waste time. How sure? ये छोटी सी assessment है। I'll probably finish my homework. हाँ जी, 100%, 90%, 50%.
Any one of you? I will probably finish my homework. कितने % श्योर है कि आप अपना काम खत्म कर लेंगे? Yes? जी. Speak louder. Speak louder. I can't hear you. Hello. What percentages are you sure? चलिए देखते हैं चैट में पूछा है. 70 to 75%. मुताहिर साहब कहते हैं सर आपकी आवाज़ अच्छी तरह से नहीं आ रही. आज इशू फिर है, नेट का इशू है भाईजान, मेरी आवाज़ का इशू नहीं है. मेरी आवाज़ उसी तरह खूबसूरत प्यारी आवाज़ है लता मंगेशकर की तरह, ऐसी बात कोई नहीं है, सिर्फ नेट का इशू है. और ये 70 टू, अच्छा अफरी ने कहा है कि 60 to 70, मुताहिर हबीब 70 to 75. जी जी. सर ये probably का वर्ड जब आ जाए तो इट मींस दैट कि ये बीच में है, मींस इट बिटवीन. भाईजान बीच में अगर होता है तो ये 50% होता है, बीच में, दरमियान मींस 50, और वो बात होती है मे की. और जब ये बीच से थोड़ा सा ऊपर 100 के नज़दीक हो तो फिर ये बात प्रोबेबिलिटी में आ जाती है. तो अभी स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि ये 90% तक होगा. प्रोबेबल मींस 90%, मे का मतलब है 50. I will make spaghetti for dinner. तो कितने % श्योर है? I will 100% श्योर है. ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ. Maybe it will snow again tomorrow. जी, maybe अब आ गया. कितने % श्योर है? चैट में